السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز کریں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تیری قدرت کے آگے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اراکین اسمبلی کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور اراکین سینیٹائزر گیٹ سے گزر کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اراکین اسمبلی کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اون شرازی سے۔ جی اون شرازی، ایس او پیز ریڈی ہو گئی قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے؟ جی اعتزاز، بالکل یہ ایس او پیز جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے طے کی تھی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کس انداز میں شرکت کی جائے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ مختص کیا گیا تھا کہ تمام اراکین جو قومی اسمبلی ہے ان کا باقاعدہ طور پہ جو ہے کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ اجازت ہوگی کہ وہ اسمبلی اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم 3 اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ ہر پارٹی کے موجود ہونے چاہیے۔ اب سے تھوڑی دیر اسپیکر قاسم سوری نے پارلیمنٹ کا دورہ کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے گیٹ نمبر 1 اور 5 پر جو اسکریننگ سسٹم ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے پارلیمنٹ ہاؤس کی پارکنگ میں قائم کورونا ٹیسٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پہ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ، عملے اور میڈیا سمیت سب کے کورونا ٹیسٹ ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ ہر جماعت کی کم سے کم ارکان پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اجلاس کی کارروائی 3 گھنٹے تک چلائی جائے گی۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس کے دنوں کا تعین کرے گی۔ جی بہت شکریہ اون شرازی۔ ملک کے مختلف شہروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں دکانیں کھلیں گی۔ پنجاب میں بھی کاروبار اوپن ہے۔ دیگر شہروں کے بازاروں میں بھی رش دیکھا جا رہا ہے۔ کہیں ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے تو کہیں نہیں ہو رہا۔ پنجاب بھر میں جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی نے شہریوں کی جزوی طور پر رونقیں بحال کر دیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں مارکیٹوں میں شہریوں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروبار کے بڑے انڈور مراکز ابھی بھی بند ہیں، جبکہ پولیس اور دیگر انتظامی ادارے غیر قانونی طور پر کھولنے والے ان پلازوں کو بند کروانے میں مصروف ہے۔ حکومت پنجاب کے فیصلے کے مطابق ہفتے میں 4 دن پیر سے جمعرات تک کاروبار کھلے گا، جبکہ ہفتے کے باقی 3 ایام جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو جزوی لاک ڈاؤن ہوا کرے گا۔ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران ابھی بھی کریانہ سٹورز، دودھ دہی گوشت کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ لاہور میں جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر کی سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ اور پولیس ناکوں میں کمی کر دی گئی۔ کوئٹہ میں بھی کاروباری مراکز کھل گئے۔ جیولری اور جوتوں کی دکانوں پر شہریوں کی جانب سے خریداری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دکاندار لیاقت بازار سمیت جناح روڈ، عبدالستار روڈ اور دیگر شاپنگ مالز میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے دکھائی دیے۔ کے پی میں اور صوبہ سندھ میں بھی کاروباری مراکز کھل گئے ہیں۔ کراچی کی لائٹ ہاؤس کی مارکیٹ کے دکانداروں نے بیشتر دکانیں صبح 8 بجے ہی کھول دیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے قواعد و ضوابط جاری ہونے کے بعد کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی۔ کاروبار صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلیں گے، تاہم دکانوں پر آنے والے گاہکوں میں سماجی فاصلہ رکھنا دکانداروں کی ذمہ داری ہوگی۔ کراچی میں دکانیں کھلنے کے بعد شہر کی رونقیں بحال ہونے لگی۔ شہریوں نے بھی دھڑا دھڑ عید کی خریداری شروع کر دی۔ مزید جانیں گے اشرف سولنگی سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، آج دکانیں مکمل طور پر کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ایم اے جناح روڈ کے متصل کاظم رضا مارکیٹ میں۔ جیولری کی مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ جامع کلات بھی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ 2 ماہ کے دوران وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کا روزگار کھل گیا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، روزگار کا کچھ آسرا بنا؟ ہاں، ابھی آئے ہیں تو انشاءاللہ آسرا بھی بنے گا۔ رازق تو اللہ ہے نا، جب بنتے جب بھی دے رہا تھا، کھلا ہی رہا تھا نا وہ، اب آئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ سے امید ہے۔ حکومتی ایس او پیز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ تو دیکھیں نا، ادھر یہ دیکھیں آپ، یہ ہم نے حکومت کے حساب سے حکومت کے جو حکومت کہے گی اس کے ساتھ تعاون بھرپور کیا جائے گا، لیکن یہ کہ حکومت بھی تھوڑا سا ٹرانسپورٹ کو کھولے۔ جی بالکل، آپ نے دکانداروں کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے مطمئن ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ ٹائم پیریڈ بڑھائیں دکانوں کا، تاکہ
जो लोग हैं, खरीदार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उनके रोज़गार का भी कुछ ज़रिया बने। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। उधर सरगोदा में भी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। लोगों ने हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs को नजरअंदाज कर दिया है। मजीद जानते हैं मलिक आबिद से। जी आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन जो है तकरीबन 1.5 माह से अबाव के टाइम के बाद जो है वो हुकूमत की तरफ से नरमी की गई है और बाज़ार जो है वो तकरीबन खोल दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे ही बाज़ार खोले हैं उसके बाद जो है आवाम जो है वो एक जम्मे गफ़ीर जो है वो बाज़ारों का रुख कर चुका है और यहाँ पर इतना रश है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रही है। इसके हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से यहाँ पर SOPs का कहा गया था कि SOPs के तहत जो है लोग अपने घरों से निकलें ताकि कोरोना वबा से बचा जा सके, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो बिल्कुल SOPs को नज़रअंदाज करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएंगे जी कि आप यहाँ पर SOPs के बगैर निकले हैं, ये कोरोना इतना ख़तरनाक है, इससे कोरोना भी हो सकता है, आप क्यों नहीं एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जैसे सबको पता कि मतलब कोरोना वायरस भी है और लॉकडाउन भी खुला है, तो इस लिहाज से कोई भी बंदा जो है ना वो एहतियात नहीं कर रहा। अगर ऐसे एहतियात ना करते गए ना तो ये जो मतलब बीमारी है ना ये और फैल जानी है। नहीं, अच्छा, लोगों की तो बात अलहदा से है, आपने भी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की हुई है, ना कोई मास्क है ना कोई ग्लव्स है? वो इसलिए क्योंकि लोगों का ईमान जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। ये लोगों को ये जो मतलब बोल है कि कोरोना से लड़ना नहीं डरना है, वो डरना नहीं यानी कि लड़ना है, तो अल्लाह की ये दी हुई एक मतलब इम्तिहान है हमारे पे, और अल्लाह के इम्तिहान से कौन लड़ सकता है। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे आज बाज़ार खुला है, अगर SOPs को मुकम्मल नहीं करेंगे तो उसके हवाले से अगर कोरोना वबा जो है जहाँ इतनी, जबकि देखने में ये आ रहा है कि मरीज़ों की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, अगर यही सूरत हाल बाज़ारों की रही तो यहाँ पर कोरोना वबा जो है वो उसको फैल जाएगी और उसको वबा पर काबू करना मुश्किल होगा। यहाँ पर 90% लोग जो है वो SOPs को मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं और यहाँ पर जो SOPs है हुकूमत की तरफ से कहा गया था मास्क और ग्लव्स का, उसको हवा में उड़ा रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के बाज़ारों का रुख किया हुआ है और यहाँ पर बड़ी तादाद जो है लोगों की वो ईद की खरीदारी में मसरूफ़ अमल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ईद के रंग खवातीन की तैयारियों के बगैर अधूरे ही रहते हैं। सादिकाबाद में बाजार खुलते ही खवातीन भी खरीदारी के लिए पहुंच गई। कपड़े, ज्वेलरी और जूतों की दुकानों पर खवातीन मनपसंद खरीदारी कर रही हैं। बता रहे हैं आसिफ आवान। जी आसिफ आवान, क्या मंजर है बाजारों का? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के कज़ाफ़ी बाज़ार में। हुकूमत की जानिब से 47 रोज़ बार लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ख़वातीन ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद ख़वातीन से जानते हैं कि वो अपनी तैयारियों में क्या ख़रीद रही हैं और वो बाज़ार आके क्या मैसेज देना चाहती हैं कोरोना वबा के पेश नज़र। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यहाँ पे ज्वेलरी ख़रीदने आई हूँ और सबसे पहले बात तो ये है कि हुकूमत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि उन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म किया। वैसे भी ईद आने वाली थी तो जाहिर सी बात है सबने शॉपिंग तो करनी ही थी, लेकिन हम लोग घर से निकले हैं तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ किया है और मास्क वगैरह पहना है, तो हम सबको चाहिए कि एहतियाती तदाबीर करें। जी खातून की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर पर इस्तेमाल करते हुए जो हम ख़रीदारी वो कर रही हैं और इसी तरह ख़रीदारी करनी चाहिए। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो है रेट में फ़र्क पड़ा है और गाहक उनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कस्टमर जो है वो शॉप पे आते हैं, वो रेट्स के हवाले से बार्गेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। हमसे पूछते हैं कि जो है लॉकडाउन के बाद रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या कैसे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है रेट मुनासिब रखे हुए हैं ताकि जितने भी कस्टमर हज़रात हैं या जितने भी जो आते हैं हमारे पास, बहनें हमारी आती हैं, वो सारे के सारे रेट जो हैं हम मुनासिब रखे हुए हैं ताकि वो ख़रीदो फ़रोख्त तसल्ली से कर सकें और जो है उनको रेट्स के हवाले में किसी किस्म की कोई मसला मसाइल जो है ना वो उनको ना हो। जी बिल्कुल, दुकानदार की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि रेट मुनासिब रखे गए हैं ताकि लॉकडाउन से परेशान जो शहरी हैं वो भी अपना सुकून से जो है ईद की तैयारी कर सकें और हम भी अपना कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कमा सकें। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अवान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी के बाद सड़कों पर रश लग गया। प्राइवेट गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों में SOPs और एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से नरमी के बाद सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। लोग जो है वो बाज़ारों की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन बिलावल अगर आपको दिखा सके, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के फैज़ाबाद का जो इंटरचेंज है, फ्लाई ओवर है, वहाँ पर ये मेन जगह है जहाँ से जो रावलपिंडी के लोग और इस्लामाबाद में लोग जो दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर सुबह से ही बड़ी तादाद है गाड़ियों की, यहाँ पर हमें गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। SOPs के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वफाकी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि आप SOPs का खास ख्याल रखें। खासतौर पर जो टैक्सी गाड़ी है उसमें कम लोग बिठाएं, 3 लोग बिठाएं और मास्क पहनाएं। उनको जो है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल का भी कहा गया, लेकिन ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जो टैक्सी गाड़ी है उसमें 4-4 लोग जो है वो बैठे हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के हवाले से जो लोगों की अपनी ज़ाती गाड़ी है उनमें भी जो SOPs का कहा गया, उनका भी मुकम्मल तौर पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो मार्केट्स हैं वहाँ पे क्योंकि अब ख़रीदारी जो है वो शुरू हो चुकी है, लोगों की एक बड़ी तादाद जो वो ईद की शॉपिंग में जो मशगूल है, तो वहाँ पर भी बेहंगम सा हमें जो ट्रैफिक नज़र आ रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, मोटरसाइकिल पर जो है वो 2-2, 3-3 लोग सवार हैं। इसी तरह गाड़ियों में जो है वो लोग ज़्यादा लोग सवार हैं, 4 की बजाय 5-5 लोग जो हमें सवार नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये है कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो मास्क पहने हमें नज़र आते हैं, इसके अलावा नज़र नहीं आते। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस जुम्मा शहरों में जो है बंद है इस इंतजामिया की जानिब से, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी हैं। लोग जो प्राइवेट तौर पर कारों पर जो है और इसके अलावा जो कैरी डब्बा है खासतौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के आमद रफ्त के लिए। तो उसमें जो है वो इन चीज़ों का जो एहतियाती तदाबीर है, SOPs हैं, उन पर बिल्कुल हमें जो है अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। यकीनन इस हवाले से इंतजामिया को जो है वो सख्ती अहकामात जारी करने की ज़रूरत है और इंतजाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता जो कोरोना का मर्ज़ है वो फैलने का भी खदशा है, क्योंकि लोगों ने सफ़र भी करना है, एक दूसरे के साथ मिलना भी है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमें पहले यहाँ पे फैज़ाबाद जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर चौकी नज़र आ रही थी और मुख्तलिफ जगहों पर चौके भी नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो चौके भी नज़र नहीं आती कि जो लोगों को चेक करने के बाद जाने देते। नरमी के बाद अब लोग जो है वो बगैर चेकिंग के यहाँ से जा रहे हैं और इंतजामिया जो है वो थोड़ी सी जो है कम मुतहरिक हमें नज़र आ रही है, मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग जो है इस नरमी का फ़ायदा उठा रहे हैं और बिल्कुल एहतियाती तदबीर नहीं कर रहे, जो यकीनन एक परेशान कुन बात है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर। गवर्नर सिंध के एतराज़ात के बाद कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस से बिजली और गैस के बिल्स में रियायत की शिक खारिज कर दी गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एतराज़ात दूर कर दिए। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस में आवाम को बिजली और गैस बिल में रियायत पर एतराज उठाते हुए कहा था कि गैस और बिजली का मामला विफाकी दायरा कार है। गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज के बाद सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस से बिजली और गैस के बिल में रियायत की शिक खारिज कर दी। गवर्नर सिंध को कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस इरसाल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जबकि महकमे कानून और वजीर आला सिंध ने भी समरी की मंजूरी दे दी है। हायर एजुकेशन सिंध भर में आज कोरोना वायरस के मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की तादाद 200 हो गई और 24 घंटों में 537 मरीज केसेस सामने आए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3730 टेस्ट किए गए, जिनमें 537 केसेस मुस्बत आए। आज 68 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए, जिनकी मजमूई तादाद 2149 है। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि कारोबार SOP के तहत दिए गए वक्त के मुताबिक शुरू हुआ है। तमाम कारोबारी दोस्तों को बताई गई SOP तहत काम करना होगा। मैं खुद भी शहर का दौरा करके जायजा लूंगा। इंतजामिया किसी को हरासा ना करे, लेकिन SOP पर भी अमल दरामद करे। आपको बताएं, तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत पर इल्जाम लगाया जाता है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हमारे फैसले जरूरत से ज्यादा हैं। PTI रहनुमा इल्जाम लगाते हैं कि कोरोना पॉजिटिव की तादाद गलत बताई जा रही है। शायद ये लाइल्म है कि सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा 198 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ रोज से PTI के हमारे जो नाक़िदीन हैं वो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध हुकूमत के जो फैसले कोरोना वायरस के हवाले से हैं वो ओवर रिएक्शन है, वो एग्जैजरेटेड है। कोई कहता है कि एक मामूली फ्लू है कोरोना वायरस, तो कोई आके कहता है कि जी फिगर्स को एग्जैजरेट किया जा रहा है और इतनी अमवात तो हुई नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी तक सूबाई सिंध के अंदर 198 ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह ताला को
प्यारे हो चुके हैं कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला होंगे, उसके बावजूद आप कहते हैं कि परेशान होने की बात नहीं है। आपको मैं एक और बड़ी ख़तरनाक डिटेल देना चाहूँगा। 14 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करने का फ़ैसला किया और 14 अप्रैल के बाद अभी तक 68 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ICU बेड्स पर हैं। आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध हुकूमत के फ़ैसले कराची दुश्मनी पर मबनी है। आप एक बार फिर लसानियत को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन 68 वो जो 68 ICU में पेशेंट्स हैं उनमें से 62 पेशेंट्स का ताल्लुक कराची शहर से है। थोड़े होश के नाखून लीजिए, हर चीज़ पर सियासत ना कीजिए, हर चीज़ के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को तनकीद ना कीजिए। अगर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, अगर आप हमारा हाथ नहीं थाम सकते, अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम लोगों को गुमराह ना कीजिए। कोरोना वायरस एक रियलिटी है। अदालतों में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात न होने से मुतालिक महकमा सेहत सिंध ने सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम भी हर किसी का कोरोना टेस्ट नहीं कर रहे, जो इकदाम जरूरी हैं वो लिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट में अदालतों में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात न होने से मुतालिक दरखास्त की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने की। इस दौरान महकमा सेहत सिंध की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालतों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 11 थर्मल गन्स फराहम कर दी गई हैं। 5 थर्मल गन्स सिटी कोर्ट, 1 मलीर कोर्ट और 5 हाई कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट को दिए गए जवाब के मुताबिक कोरोना का टेस्ट हर एक का नहीं, सिर्फ मुश्तबा शख्स का किया जा सकता है। सिंध हुकूमत के पास महदूद टेस्टिंग किट्स हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सिंध हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए जवाब पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम भी हर किसी का कोरोना टेस्ट करने का नहीं कह रहे, जो इक़दामात जरूरी हैं वो लिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अदालतों में कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाने का हुक्म देते हुए दरखास्त की मजीद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 30,941 तक पहुंच गई। एक दिन में 28 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 667 हो गई। मुल्क भर में अब तक 2,94,894 टेस्ट किए जा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,367 अफराद के टेस्ट हुए, जिनमें से 1,476 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में अब तक 2,94,894 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलोचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679, जबकि आजाद कश्मीर में 86 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 28 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 667 हो गई। सिंध में 189, पंजाब में 197, खैबर पख्तूनख्वा में 245, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलोचिस्तान में 26 और इस्लामाबाद में 6 मरीज जान से गए। मुल्क भर में अब तक 8,212 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से बाजार खोलने के अहकामात के बाद सुबह से ही मार्केट्स खुल गईं, जिसके बाद शहरी अपने अहल खाना के हमरा एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत की जानिब से जो है ताजिरों को जो है दुकानें खोलने का फैसला दिया गया था और उनको कहा गया था कि एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अपने कारोबारी सरगर्मियां जो है बहाल करें। मैं इस वक्त हैदरी मार्केट पर मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ दिखा सके कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ईद की तैयारी के लिए वो घरों से निकल आई है। लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और बस उनको एक चीज़ है कि पहले जो है मार्केट रात में भी खुली रहती थी, अब जो है दिन ही दिन के औकात में जो उनको शॉपिंग करनी। हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लगा है शॉपिंग करते हुए। आप मुझे बताइए। आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है और एहतियाती तदाबीर के साथ हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और अभी आप बच्चों के साथ आएंगे ईद की शॉपिंग करने? बच्चियों के साथ आई हूँ, मैं अपनी बच्चियों को लेकर आई हूँ। अच्छा, हमारे साथ आपने इनकी बात सुनी कि अपने बच्चों को लेके आई हैं शॉपिंग कराने के लिए और कोई इतनी जो है एहतियाती तदाबीर का खास तौर पे जो है यहाँ पे
एहतियात की जा रही है कि इस वायरस से भी बचा जा सके और दूसरों को भी इस वायरस से महफूज रख सकें। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। लाहौर के तारीखी बाजार अनारकली बाजार में दुकानें खुलते ही खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजार का रुख कर लिया। खवातीन बच्चों को भी ईद की शॉपिंग के लिए साथ लाई हैं, बता रहे हैं नबील नकवी। जी नबील। जी बिल्कुल 47 रोज बाद लॉकडाउन खुला तो लोगों को मौका मिला क्योंकि मार्केट्स खुल गई और पीछे बहुत कम दिन रह गए ईद के लिए, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद ने जो है मार्केटों का जो है वो रुख कर लिया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर अनारकली मार्केट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ है। हर कोई यहाँ पे दुकानदार है या स्टॉल वाला या जैसे आप देख सकते हैं लोग अपने रोजगार के लिए इस वक्त मार्केट्स में निकल आए, खास तौर पे क्योंकि आज 17वां रोजा गुजर चुका है, 13 दिन रह गए पीछे ईद में। तो लोगों की जो इस वक्त ज्यादातर तवज्जो है वो इस वक्त सिर्फ ईद की शॉपिंग पर है कि किसी तरीके से जो ईद की शॉपिंग है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इंतहाई कम वक्त होता है आजकल के दिनों में, खास तौर पे जब से लॉकडाउन आज जो पहला दिन है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सुबह 5 बजे सुबह फजर से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ लोगों के पास टाइम है सिर्फ शॉपिंग करने के लिए। 9-10 बजे दुकानें खुली हैं, लोगों के पास कुल मिला के 5 से 6 घंटे हैं। रोजे की हालत में इस तपती धूप में लोग मजबूर हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, इसलिए लोगों की जानिब से किसी तरह की एहतियाती